Hello everyone. Hello, this is Siddhant Saurabh and I welcome you to Siddhant Saurabh classes. This is Indian economy first lecture and in this is a series that is going to start, and in this series Indian economy series we will be covering whole of the syllabus of Indian economy. That will cover syllabus of prelims as well as mains, and in this first lecture our agenda is to discuss and ponder over whole of the syllabus. We have to be insightful regarding what does every terminology, different terminology that is mentioned in the syllabus, what does that mean, how we will have to deal with that in our daily study timetable, how we will have to refer to those terms in the newspaper or in any static books. So in this class we will be discussing the syllabus that is very important, and once syllabus is fit into our mind, it will be easy for us to pursue as per the demand of the exam. So the books that is referred is Sir Ramesh Singh mainly, and somewhere Murnal sir notes is also referred. Moreover, NCRT is also is very important and for building the base of NCR of economy. Ninth class NCRT, 10th class NCRT of Indian economy, then 11th Indian economy NCRT, and 12 also. Then micro and macro economy also. If one must read, go through that. So first let us first discuss about prelims exam, preliminary UPSC CSC preliminary exam syllabus. The first topic is Indian economy and development, कि भारत का अर्थव्यवस्था और उसका विकास, understanding the basic structure and functioning of Indian economy. So in this various concepts that are very important is that GDP, gross domestic product, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ओके, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी. तो जीडीपी क्या है कि प्रोडक्शन इनसाइड द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. ठीक है, टेरिटरी के अंदर, किसी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है दैट इज जीडीपी. इन्फ्लेशन, व्हाट आर द कंसेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. ठीक है, various curves are there, flips curves are there. ठीक है, those concepts and why, how inflation is related to monetary policy. कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है. ठीक है, thus we have to link this. Then macroeconomic indicators, we have to have macroeconomic indicators like GDP growth rate, inflation rate, unemployment rate. ठीक है, इसके रिलेटेड कर्व्स हैं. ठीक है, ये सब कंसेप्ट कर पढ़ना है. फिर इकोनॉमी प्लानिंग, 5 years प्लान जितने भी है जो 1950 से शुरू हुआ था, 5 years प्लान, देन 1 year प्लान, रोलिंग प्लान. ठीक है, 2012 12th 5 year plan, that was the last 5 year plan. Then Niti Aayog came into, then Niti Aayog vision. Indian agriculture, we have to understand the challenges. What are the challenges in our agriculture currently? Green revolution आया. ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन, it increased our production. We became food surplus, but still there are challenges, that is inequality, regional inequality. For example, Punjab and Haryana is more productive, and it is not productive but it produces more. Mainly concentration of rice and wheat production is in Haryana, Punjab. But while other regions that have not developed. So drawbacks of green revolution, and currently we are pursuing towards organic, but there is also many pros and cons in organic. Then about agricultural productivity, in terms of productivity, there are states like Orissa or Jharkhand and even Bihar. In terms of productivity, they are much forward than Punjab.
Then industry and infrastructure, the knowledge of industrial infrastructure sector including policy challenges, recent डेवलपमेंट, ये प्रीलिम्स का हो गया. बैंकिंग फाइनेंस मॉनेटरी पॉलिसी वही है, द थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड. देन इंटरनेशनल इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट, जो अबाउट डब्ल्यूटीओ, वेरियस बॉक्सेस आर देयर रिलेटेड टू सब्सिडी, कि इंडिया में अभी भी फूड प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी दिया जाता है, इंडिया में दिया जाता है. और जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्री, वो भी सब्सिडी देती है. बट देर आर वेरियस क्लॉज इन टर्म्स ऑफ बॉक्स, दैट फॉर एग्जांपल देर इज ग्रीन बॉक्स, देर इज येलो बॉक्स, देर इज एम्बर बॉक्स. In terms of research you can give any amount of funds, but not in terms of subsidy. Foreign developed country they give in terms of research. लेकिन यहीं पे बहुत सारी जो बातें हैं वो हमें समझनी है. FDI policies, then budget and fiscal policy, understanding the union budget, fiscal budget deficit. यूनियन बजट जो गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के बेसिस पे यूनियन बजट को पास किया जाता है. देन फिस्कल डेफिसिट, you will have to know fiscal deficit, whatever our government's income, receipt and expenditure is more, receipt is less, then we will have deficit, and that amounts to fiscal deficit. Revenue deficit, revenue expenditure, what is revenue जो generate होता है, government earns revenue in terms from stamp duty, when there is sale and purchase of land, or you pay taxes, that is revenue income. ये पब्लिक डेप्ट, ये समझना. टैक्सेशन पॉलिसी, देयर इम्प्लीकेशन इन द इकोनॉमी. फॉर एग्जांपल पब्लिक डेप्ट और इसका इम्प्लीकेशन, रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया था कि पब्लिक डेप्ट जो अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बाय IMF, इट विल बी अराउंड 7%. लेकिन इसका क्रिटिक ये था कि मोस्टली इट इज़ डेप्ट, जो हम लोग लोन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं. मेनली लोन दिया जा रहा है, तो हमारा कंजम्पशन जो है, हम लोग कंजम्पशन पे कम खर्च करेंगे, हम लोग अपना साधन पे कम खर्च, बिकॉज हम लोन ले रहे हैं और उससे जो अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद फिर लोन को चुका रहे हैं. ठीक है, तो पब्लिक डेप्ट के थ्रू ड्रिवन है हमारा भी जीडीपी. तो ये सब समझना होगा. देन इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, एसडीजी गोल्स, SDG 1 से लेकर 17 तक जो भी गोल्स होते हैं. देन गवर्नमेंट क्या कर रही है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए. ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे PM कुसुम, और देन ठीक है, ये प्रीलिम्स का था. You must go through on your own over these concepts, this terminology. We will be discussing mains in more details, and moreover whatever the terminology that are given in mains, that is already covered in prelims. So mainly we have to focus on this, and also we will have to keep these things in mind when we are covering the syllabus, when we are starting our economy. We will be covering each things one by one, and finally we will know what are the linkages of the syllabus to the content that we will be studying. Indian economy and issues related to planning, mobilization of resource, growth, development and employment. तो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी मीन्स there is production and there is distribution, there is demand also. डिमांड, ठीक है, डिमांड फिर प्रोडक्शन फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इकोनॉमी हो गया. तो हम प्लानिंग करते हैं इसमें. ठीक है, हम लोग 5 ईयर प्लान पास किए थे. वी फॉलोड सोशलिस्ट इकोनॉमी.
Then we will have to mobilize the resources. We mobilize via taxes, and we also mobilize via the dividends of public sector units. Then growth, development, employment. Let's know this in detail. Indian economy and issues related to planning, mobilization, resource, growth, development, economy. तो प्लानिंग में क्या आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? पहले हम प्लानिंग का मतलब जानेंगे, फिर प्लानिंग का जरूरत क्या है इन दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल प्लानिंग क्या है, इंपेरेटिव वर्सेस इंडिकेटिव प्लानिंग क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर 12 5 ईयर प्लान, उसमें हर एक का ऑब्जेक्टिव था अलग अलग। इसका हिस्ट्री क्या रहा है वही। देन टेक्निक्स, अचीवमेंट एंड फेल्यूर ऑफ इंडियन प्लानिंग। क्या क्या फेल्यूर रहा है अभी तक, जो 5 ईयर प्लान जो फेल हुआ। उसके बाद हम बढ़े नीति आयोग की तरफ। देन वी मेड इट मोर फेडरल, प्लानिंग वाज मोर डिवॉल्व्ड। State government also included to have their say in planning. What were the shortcomings of planning? And currently that we are facing jobless growth. ठीक है, ये प्लानिंग में ये नहीं चाहिए। प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओके। प्लानिंग में भी इधर आएगा नीचे। तो प्लानिंग में आ गया नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन, ये भी जानना है, ठीक है। देन मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेस। First we will know different types of resources like financial resource, human resource, natural resource. Then what is the need of resource mobilization? What is the role of saving and investment? रिसोर्स, जैसे हर हाउस होल्ड देर इज हाउस होल्ड सेविंग, हर घर में कुछ ना कुछ सेविंग होता है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट भी होता है, अगर सेविंग्स ज़्यादा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगेन इनकम बढ़ेगा। देन गवर्नमेंट रिसोर्सेज, टैक्स एंड नॉन टैक्स। तो गवर्नमेंट का रिसोर्स भी है, टैक्स रिसोर्स है, कुछ नॉन टैक्स रिसोर्स भी है। फॉर एग्जांपल फाइन्स, fiscal monetary policy. Then we will be talking about banking sector, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। ये सब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में आ जाता है कि बैंक एक बहुत लीड रोल प्ले करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, देन कैपिटल मार्केट, एक्सटर्नल सोर्सेज, एफडीआई, ओडीए। एक्सटर्नल सोर्स मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आता है। बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बैंकिंग सेक्टर क्या करती है? बैंक जो है वो पब्लिक का पैसा लेती है, उसको डिपॉजिट करती है अपने में, फिर ये लोन देती है पब्लिक को, फिर उससे इंटरेस्ट आता है, ठीक है। लोन जब देती है तो पब्लिक के पास पैसे आते हैं, तो पब्लिक उसको इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों के पास इनकम आती है, फिर वो वापस में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द रोल ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो हाउ, एंड दिस इज हाउ वी मोबिलाइज आवर रिसोर्सेज, ठीक है। So and next is public borrowing. Sometimes government borrows, so government need money, government issue bonds to the public buy it, 2000 rupees bond at the rate of rupees 1800। तो दो सौ का प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट एक साल बाद 2000 देती है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट। चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज? अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें चैलेंजेस तो होगा ही। तो what are the challenges, what are the steps that can be taken? Then we will be talking about growth and development. Growth and development में आता है what are the meaning of development, difference क्या है development और growth में। growth भी हो रहा है, development भी हो रहा है। growth means just economy बढ़ रही है, we can see that जीडीपी रेट हमारा हाई है, 7% 8% से हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है सबके पास। इगैलिटेरियन ग्रोथ नहीं है, इगैलिटेरियन, इक्विटी, इक्वालिटी, सब्सटैंटिव इक्वालिटी,
अगर ये सब रहेगा तो डेवलपमेंट है। फाइन। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इंक्लूसिव व्हेन वी इंक्लूड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, व्हेन देयर इज ग्रोथ and growth that includes every section of society, every marginal section of society, women, child, uh, tribals, scheduled castes, scheduled tribes, landless laborers, everybody is included in the growth. That is inclusive growth. What are the elements? What is the need? What are the indicators? Inclusive growth, education, gender parity, labor force participation rate. We need to see if women का labor force participation rate कितना है. अगर ये जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा inclusive growth है. What about tribals? What about those who lives in forest dwellers? Health का क्या status है? Inclusive growth. Challenges in achieving inclusive growth in India. Challenge क्या? 12 फाइनेंस ईयर प्लान और इंक्लूसिव ग्रोथ क्या रिलेशन था? गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट क्या करता है बजटिंग के लिए? ठीक है, ये हमने देखा। और उसके बाद हमें देखना था डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रो पुअर ग्रोथ, बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ, डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन, ग्रीन जीडीपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जस्ट डेवलपमेंट, व्हाट आर द मेजर्स, अप्रोच, मार्केट बेस्ड अप्रोच। ठीक हो गया, मार्केट बेस्ड अप्रोच। रोल ऑफ स्टेट क्या है इन प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी और चैलेंज। ठीक है, जो हमने इधर बता दिया वही है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में देखना है हमें अर्बन, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चल रहा है, फॉर्मल नहीं है। व्हाट आर द टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, लाइक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, वर्क एज पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया का वर्क एज पॉपुलेशन 27 ईयर्स अराउंड है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, कितने लेबर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड हाउ मच पार्टिसिपेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में जानना है। अगर ये न्यूज़ में कहीं भी रहे तो पढ़ना है। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना सेक्टर, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्राइमरी सेक्टर इज देयर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अराउंड, टर्सरी सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट, अराउंड 30 to 40%। ठीक है, इतना कंट्रीब्यूट करता है। और लेकिन एम्प्लॉयमेंट ये कम देता है। प्राइमरी सेक्टर में 46% जो है एम्प्लॉयमेंट देता है, बट इट कंट्रीब्यूट्स वेरी लेस। ठीक है, सेकेंडरी तो एम्प्लॉयमेंट तो ये ज़्यादा देता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट ये कम करता है। ये जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट कम देता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी क्या है, कॉजेज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्कफोर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है एम्प्लॉयमेंट के लिए, मुद्रा स्कीम जो अभी आया है। देन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्यों लाया, स्किल डेवलप करने के लिए, ताकि जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग हैं वो वहाँ से हट के उनका स्किल डेवलप हो। बट what are various lacunas in those schemes? Now we will be talking about government budgeting. गवर्नमेंट बजट कैसे करता है? तो गवर्नमेंट के पास जो लेखा जोखा जो होता है, पैसे कहाँ से आते हैं, फिर पैसे कैसे जाते हैं। रेवेन्यू अकाउंट, revenue source, there are various revenue sources that is with the government. What are various revenue source? Like we have tax, we take tax, we have income tax. Then we also have various fines, we have stamp duty, etc. Revenue receipts,
Then revenue expenditure, we have also expenditure, revenue expenditure that we pay salary to government employees. ओके, फिजिकल पॉलिसी, डिफिसिट रिडक्शन, एफआरबीएम एक्ट। तो रेवेन्यू अकाउंट में अगर रेवेन्यू रिसिप्ट जहाँ से इनकम आ रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी होगा, डिफेंस में हम खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आता है, कैपिटल मीन्स पूंजीवाद। कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया मीन्स जैसे पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, या फिर रेलवे है, इससे जो प्रॉफिट होता है, या हमने लोन दिया है किसी कंट्री को, हो गया कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे हमने रोड बनाया, ये फ्यूचर में हमें रिटर्न देगा, तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और चेंज बजटरी प्रोसेस 2017 में एफआरबीएम एक्ट आया था, उसमें क्या सब हुआ, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट, गवर्नमेंट डिफिसिट में तो घाटा, डिफिसिट मीन्स घाटा, और डिफरेंट बजट होता है, आउटकम बजट, जीरो बेस्ड बजट, फिजिकल पॉलिसी क्या है हमारा, फिजिकल पॉलिसी यानी राजस्व पॉलिसी क्या है, वो तो रेवेन्यू हो गया। डिफिसिट रिडक्शन, एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। Then we will be studying about various land reforms in India, rationale for land reforms, success of land reforms। land reforms बहुत important था, शेड्यूल 9 को इंटर किया गया। फिर लैंड रिफॉर्म्स के तहत ही राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको भी हटा लिया गया, ये बहुत। और लैंड रिफॉर्म्स के कारण ही बहुत सारे गजब के जजमेंट्स आए, लाइक केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ के सुप्रीम कोर्ट का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत इसमें ग्रोथ हुआ, मैच्योरिटी आई, बहुत कुछ चेंजेस हुआ, इवोल्यूशन हुआ। रिसेंट इनिशिएटिव्स, लैंड लीजिंग, एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट एक्ट, इसका लैंड रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम रहा है ये जानना है, ठीक है। देन लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, फेजेस क्या रहा है 1991 से लेके एलपीजी रिफॉर्म्स, डिफरेंट सेक्टर में क्या इम्पैक्ट हुआ इसका, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर ग्रोथ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे 1991 से पहले कौन सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, उसके बाद क्या रहा है। देन फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कैसे कैसे ग्रोथ हुआ। व्हाट आर द लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। हमने रिफॉर्म तो किया लेकिन क्या उतना आउटकम आया। देन व्हाट आर द वीकनेस फेल्योर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो अभी बन रहे हैं, क्या वो उतना इम्पैक्ट, उतना रिजल्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, या दे रहा है, और कहाँ कहाँ किस रीजन में, जैसे इंडिया है तो it is more concentrated, where are the backward states, eastern states, are they benefiting, make in India project, pros and cons, क्या ये सक्सेसफुल रहा है, ये आपको देखना है। ये सब आपको, इस सब का जवाब आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एनर्जी, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, the need for investment, foreign investment models, FDI, FII, foreign direct investment। अभी 4 जून 2024, कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर कोलैप्स भी नहीं, ऐसा लगा कि मेजोरिटी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट को, तो फॉरेन एफडीआई बहुत कम हो गया देश में, ठीक है। तो क्या इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों में अंतर क्या है ये जानना है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में एफडीआई बढ़ता है तो एफडीआई घटता है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब जानना है क्यों होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, वेरियस इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इसके बारे में जानना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। एग्रीकल्चर के बारे में भी, उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर पे आते हैं। देन ई टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर एक बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें रहेगा क्रॉपिंग पैटर्न, रबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न in plain areas, that is cropping pattern that is practiced, the cropping pattern that is practiced in hilly areas. Then mixed type of cropping pattern that we can practice
What are the reasons why cropping pattern differ? Pan ahead, अच्छा वो irrigation में आएगा. Reasons why cropping pattern differ. Then emerging trends in cropping pattern, long run effects of current trends in cropping pattern, different types of irrigation and irrigation system, modes of irrigation. कैनाल से irrigation होता है, irrigation via underground water, then sources of irrigation, progress कैसे हुआ irrigation first 5 year plan में, choosing an irrigation system. For example, in some places there are pine ahar irrigation system, कहाँ पे कहीं पे कैनाल बेटर है, कहीं पे ट्यूबवेल इज गुड, ठीक है, वो भी देखना है. देन इन्वायरमेंट इफेक्ट्स क्या हुआ है, लीचिंग, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ओवर इरिगेशन से सॉइल डिग्रेडेशन होता है, नीड ऑफ सिस्टमेटिक इरिगेशन रिफॉर्म चाहिए, नेशनल वाटर पॉलिसी चाहिए. देन वी हैव टू मार्केट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट हो गया. देन ई नैम जो अभी रिसेंटली आ रहा है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. देन इसमें इसका रोल क्या है, फिर ड्रॉबैक्स क्या है, फिर कैसे फूड का डिस्ट्रक्शन होता है, वेयर हाउसिंग क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ. देन ई टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, एमएसपी जो दिया जाता है, मतलब दो क्रॉप्स ज़्यादा यूज़ होता है, दो क्रॉप्स एमएसपी में ज़्यादा यूज होता है, डैट इज़ राइस व्हीट. लेकिन हमें मिलेट्स पे भी ध्यान देना है, हमें अदर क्रॉप्स पे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पे भी ध्यान देना है. तो इफेक्टिवनेस, एक्सटेंड, प्रॉब्लम्स ऑफ सब्सिडीज में क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा सब्सिडी मिलने की वजह से प्रॉब्लम है, हम लोग बस राइस व्हीट पे ध्यान देते हैं. तो देर इज सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर क्राइसिस, फर्टिलाइजर इशू. देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, ठीक है, अभी पीडीएस जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है. लिमिटेशन बहुत सारा है. पहले तो लीकेज होता था, ठीक है, लीकेज को ख़त्म करने के लिए आधार से लिंक किया गया, तो बहुत सारे फर्जी आधार कार्ड बन गए, एक आधार में 10 लोग ऐड हो जाते थे उस बेसिस पे. फिर इसमें KYC आजकल लाई गवर्नमेंट, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिख रहा है. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शनिंग फेयर प्राइस क्या है, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ इज मॉडल एग्जाम्पल. शॉप्स, FCI राशन कार्ड, आधार लिंकिंग, measures to improve loopholes, lacunas associated with PDS. What are the steps that had been taken by government? Issues of buffer stock, food security. Buffer stock, what are the objectives, what are the norms, impact of government procurement and distribution, need for food security, national food security mission, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सब food security. And food security means accessibility to food, production of food and distribution of food, plus nutrition, फूड सिक्योरिटी, ये सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है. देन एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या कह रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी, संपदा योजना, तो संपदा, ठीक है. तो ये था सिलेबस ओवरऑल, एक बार खुद से ही पढ़ लेना, इसमें अब तो आइडिया तो आपको मिल गया होगा. फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक टॉपिक को एक बार गूगल सर्च कर लो. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सर्च करो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, वेयर हाउसिंग क्या है, रेगुलेटेड मार्केट्स क्या है, सब टॉपिक को एक बार गूगल सर्च भी करना चाहिए, और फिर NCERT भी पढ़ना चाहिए, ठीक है. उसके बाद जो हम, अगर बुक्स फॉलो करना है, और ये नोट्स, सारा नोट्स आपको फ्री अपलोडेड रहेगा, फ्री मटेरियल सेक्शन जो मेरे ऐप में है, ठीक है. Then NCERT 9th 10th class 11 के NCERT इंडियन इकोनॉमिक लेवल, क्लास 12 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12 इंट्रोडक्टरी मैक्रो कुछ, ठीक है, और क्लास 11 के इंडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब बुक्स पढ़ना चाहिए, पढ़ लेना.
रेफरेंस इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, ओके गाइस, साइनिंग ऑफ ना। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे पहला फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, so this is our first lecture and that is going to be uploaded. Then we will be starting a second lecture on the first topic of Indian economy. Thank you.